देखिए, हम लोगों का डिमांड्स ऐसा कुछ नहीं है कि हम मंगल ग्रह में जाना चाहते हैं। हमारा बेसिक डिमांड है, हम जीना चाहते हैं, हम पढ़ना चाहते हैं। इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहते हम लोग यहाँ पे बैठ के पढ़ना चाहते हैं और कुछ नहीं। प्रत्येक साल 10 लाख रुपया खर्चा कर रहा है ना। एक कोचिंग में केवल आपका 22,000 आसपास स्टूडेंट आपको मिल जाएंगे, तो लगभग पूरा ऑल ओवर मिला लीजिए तो 6 लाख स्टूडेंट मिल जाएंगे। आप इसी से अनुमान लगा लीजिए कितना पैसा है। 3 स्टूडेंट्स नहीं थे, उससे ज़्यादा थे। 31 समथिंग उस टाइम पे लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे, उसके पहले 6 बजे के अराउंड। तो 3 नहीं थे और ज़्यादा थे। जो रियल नंबर है वो गवर्नमेंट छुपा रही है। 3 IAS ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳ ದುರಂತ ಸಾವಿನ ಬಳಿಕ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಯುವ ಜನತೆಯ ಆಕ್ರೋಶ ಭುಗಿಲೆದ್ದಿದೆ. ಕಳೆದ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಯುವಕರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕುರುಡಾಗಿಯೋ ಕಿವುಡಾಗಿಯೋ ಇರುವ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಈಗಲಾದರೂ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅರ್ಥವಾಗಬಲ್ಲದ, ಅಥವಾ ಈಗಲೂ ಶಿಕ್ಷಣದ ಹೆಸರಿನ, ಕೋಚಿಂಗ್ ಹೆಸರಿನ ಹಣ ಗಳಿಸುವ ದಂಧೆಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ನಿಲ್ಲತ್ತ? ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಭಾರತದ ರಾಜಧಾನಿಯ ಹೃದಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈಗ ಹೋರಾಟವೊಂದು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ದೇಶದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಬರುವ UPSC ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳ ಹೋರಾಟದ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿರೋದು ಅಲ್ಲಿನ ಹಳೆ ರಾಜೇಂದ್ರ ನಗರ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಯುವಕರು ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕನಸನ್ನ ನನಸಾಗಿಸೋಕೆ, ಪ್ರೇರಣೆ ಪಡೆಯೋಕೆ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಪಡೆಯೋಕೆ, ಬೆಂಬಲ ಪಡೆಯೋಕೆ ಬರುವ ನಗರ ದಿಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ಈ ನಗರದೊಳಗೆ ಕಠೋರ ಸತ್ಯವೂ ಇದೆ. ದೇಶದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕನಸು ಹೊಂದಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹತಾಶೆಯ ಕಥೆಗಳಿವೆ. ये जो गर्व से हम लोग कह रहे हैं ना, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, उसी का कैपिटल में 5 किलोमीटर दूर है यहाँ से राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट भवन। वहाँ पे हमारे 3 दोस्त गुजर गए, सिर्फ एक ही रीज़न था, वो लोग पढ़ना चाह रहे थे। इस देश के ब्यूरोक्रेसी में वो लोग जाना चाहते थे। ಹೇಗೆ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುವ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಯುವಕರ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳ ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರ ಶೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಿವೆ ಅನ್ನೋದರ ದುರಂತ ಕಥೆಗಳಿವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಒಂದರ ನೆಲಮಾಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ 3 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ದುರಂತ ಸಾವು ಕೋಚಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದರ ಹಿಂದಿನ ಕೊಳಕು ಮತ್ತು ಕ್ರೂರ ಸತ್ಯವನ್ನ ದೇಶದ ಮುಂದೆ ತೆರೆದಿಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗೋಕೆ ಕಾರಣ ಆಗಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟಿಸುವ ಸ್ಥೈರ್ಯವನ್ನ ಹೊತ್ತಿಸಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಸುಧಾರಣೆಗಾಗಿ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶದ ಸಂಸತ್ತಿನಿಂದ ಕೆಲವೇ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕೂಗು, ಅಳಲು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸಂಸತ್ತಿನವರೆಗೂ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸುತ್ತಿರಲೇಬೇಕು. ಗೊಂದಲದ ನಡುವೆನೂ ಭರವಸೆಯ ಮಿನುಗು ಹೊರಹೊಮ್ಮತಾ ಇದೆ. ಉತ್ತಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಯಕೆಯಿಂದ ದಿಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ಈ ಯುವ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಮೌನವಾಗಿರೋಕೆ ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡೋಕೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸೋಕೆ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರೋರಿಂದ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸೋಕೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಅವರು ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನ ರೂಪಿಸೋರಿಗೆ ಅವರ ಕೂಗು ಕೇಳಿಸುತ್ತಾ? ಈ ಭವಿಷ್ಯದ ನಾಯಕರ ಧ್ವನಿಗಳು ಭಾರತ ತನ್ನ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಕ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ತರುತ್ತಾ? ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಕೆ ವಾರ್ತಾಭಾರತಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ನಗರಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದು ಇಷ್ಟು. So it's not just one point or one person ka fault. So this is an institutional murder basically. So what happens basically is like when an institution is not ready to take the work voluntarily, there will be a systematic pressure basically that has been currently built up by the students, okay, which is a good step currently. And there are actually a few points that are to be noted by the MCD basically, okay. So it's been 6 years of my stay in Delhi basically. So I was facing this issue from past 6 years. We used to face issues even while entering the classes because the level of water used to be at least until here. This was not a today's issue. This has been a years of issues that has been never addressed. Though there have been some accidents of a minute things, but until and unless such a major incident happened, no authority or no police action has been taken place until now. Okay, not just this what to say, the study circles or something. It's a blame of everyone. So what happens is like the basement will be the cheapest price available over here. So everyone wants to make out of money from everything, and irrespective of the safety and security of students. And when it comes to Rao's IAS, so they have built such a corporate and fancy just a building because Delhi weather is as unpredictable as the politicians basically. So today it will be one flag and next day it will be another flag. It goes same with the Delhi's weather as well.
हमारी पहली डिमांड तो ये है कि जो स्टूडेंट जिनकी डेथ हुई है उनका रियल नंबर जो है वो नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि 3 स्टूडेंट्स नहीं थे, उससे ज़्यादा थे। 31 समथिंग उस टाइम पे लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे, उसके पहले 6 बजे के अराउंड। तो 3 नहीं थे और ज़्यादा थे। जो रियल नंबर है वो गवर्नमेंट छुपा रही है, पुलिस वाले छुपा रहे हैं, क्योंकि उस टाइम पे 9 एम्बुलेंस तो सामने आई थी और पुलिस की भी गाड़ी थी जिसमें 3 बॉडीज़ गई थी, वो भरी हुई थी। तो वो तो छुपा रहे हैं। तो एक चीज़ वो है कि वो चाहिए। Okay, that has all remained a mystery, just like पूरी जगन्नाथ का जो रूम है ऐसा मिस्ट्री जैसे बनाया, ठीक है। जो लोग यहाँ पे ये सारी चीज़ें देख के जा रहे हैं वो आगे जाके सिस्टम में कहीं ना कहीं तो इम्प्रूवमेंट लाएंगे, बदलाव करेंगे। पढ़ने का हम लोग यहाँ पढ़ रहे तो पढ़ने के लिए मकसद थोड़ी है कि केवल सैलरी लेना है। यहाँ पर बहुत सारे हैं जो डॉक्टर हैं पहले से, इंजीनियर है पहले से और वर्किंग प्रोफेशन में है, लगभग मैक्सिमम लोग हैं। तो वो पैसे के लिए यहाँ नहीं आ रहे, वो इस लिए भी आ रहे हैं ताकि उनका आइडियोलॉजी है कि वो कंट्री में बदलाव लाना चाहते हैं और इसीलिए आज बैठे हैं। बाकी रहते तो वो उठ के चले भी जाते, पेरेंट्स का प्रेशर भी। वही दूसरा जगह रहता तो अभी तक सारे कांच फूट जाते हैं, है ना। तो लेकिन हम लोग चाहते हैं कि नहीं, हम लोग नर्मदा से बदलाव लाएं। I don't want to mention her. They were paying the fees in a installment basis. That means you need to understand their position and on how problematically they have sent their kid to study here because they just want her to become a IAS officer one day. मुझे लगता है कि ये जो प्रोटेस्ट हुआ इसके वजह से पहले चीज़ ये होंगे, सारे बेसमेंट लाइब्रेरी बंद हो जाएंगे, जो कि होना भी चाहिए। बेसमेंट में कोई लाइब्रेरी, क्लासेस भी होते हैं बहुत सारे बेसमेंट में, तो वो क्लासेस भी बंद हो जाएंगे। ये पहला चीज़। दूसरा जो हाँ पीजीज़ भी चलती है बेसमेंट में, तो वो भी बंद हो जाएंगे। क्लासेस, पीजीज़, लाइब्रेरी सारे बेसमेंट के बंद हो जा रहे हैं। ये होना चाहिए। दूसरा ये बदलाव आने वाला है। या जो ड्रेनेज सिस्टम हम लोग का दिख रहा है ना, ये इंप्रूवमेंट में आएगा। लेकिन अगर ये रेगुलर बेसिस पे नहीं हुआ तो फिर ये बेकार है। अच्छी क्लास के लिए बच्चे जो हैं 2 लाख रुपए देते हैं, और अगर आप अलग से ऑप्शनल की क्लास लेते हैं तो उसके लिए फिर आपको 50,000 या 55,000 देने होते हैं। ये ऑप्शनल का होगा। अगर आप सीसेट का अलग से आप क्लास लेते हो तो फिर उसका 20,000 से 25,000 फीस है अलग से। तो आप अनुमान लगा लो कि टोटल 3 लाख रुपए एक बच्चे से लेते हैं ये कोचिंग वाले। दूसरी बात ये है कि LG आए तो उन्होंने 10-10 लाख का बोला था कंपनसेट करने के लिए। 10 लाख रुपए क्या अमाउंट है? 3 लाख 2.5 लाख समथिंग उस लड़की के फादर ने लोन लिया हुआ था। 10 लाख तो यहाँ रहने का इतना जल्दी ख़त्म हो जाता है। 1 करोड़ कम से कम कंपनसेट करना चाहिए कोचिंग को और गवर्नमेंट दोनों को मिलके, एटलीस्ट 50-50 लाख समथिंग। दूसरा जो तीसरा है, ये जितनी भी यहाँ पे लाइब्रेरी बेसमेंट में वो सारी इन्होंने बंद तो करा दी, बट अब उसका अल्टरनेटिव क्या है? जो भी फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर पे ओपन हो रही है, 5,000 6,000 उसका वो अप कर रहे हैं, जो मंथली उसका फीस 5-6,000 लाइब्रेरी का हम देंगे, 20,000 15,000 रूम का देंगे। और ये जो यहाँ पे इतना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ख़राब है ना, वायर ऐसे गलियों में, ये तो फिर भी चौड़ा है, गलियों में इतनी स्पेस है, मतलब अर्थ के काय या कुछ भी आए तो रूम पे ही मर जाओ, बाहर निकलोगे तो और ज़्यादा बुरी तरीके से मरोगे, ऐसी कंडीशन है। तो एटलीस्ट उसका प्रॉपर सर्वे हो कि जो बिल्डिंग्स यहाँ पे इलीगल है, 500 नहीं दिया तो खाली कर दो, बढ़ाएंगे जब मन करता है कि बढ़ जाएगा रेंट, आप खाली कर दो। तो वो सारी चीज़ें कम से कम उसको थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए। बिल्कुल पैसे बना रहे हैं, तभी तो दृष्टि नंबर 1 पे चली गई है, और रील बना के अब तो सर इसमें आ रहा है, तो माफिया ही है। कभी ऐसा नहीं हुआ है कि हमने किसी चीज़ के लिए प्रोटेस्ट किया है। और सामने पहले आती रही है प्रॉब्लम, मतलब मेरे तो जो लोकेलिटी है जहाँ पे मैं रहती हूँ सन ब्लॉक में, वहाँ पे सारी ख़राब है। मैं 10 बार MCD को कंप्लेन कर चुकी हूँ, 10 बार फ़ोन करती हूँ, कंप्लेन करती रहती हूँ कि ये प्रॉब्लम है, इसको कर दीजिए। वो लिख के ले लेते हैं, एड्रेस ले लेते हैं, बट वो कुछ करते नहीं, कभी नहीं आते। इवन जिस दिन यहाँ पे हुआ था ये, उस दिन भी मैंने वहाँ पे भी फ़ोन किया था, क्योंकि मेरे पूरे एरिया में पानी भर गया था इतना ज़्यादा कि ऊपर से नीचे उतरने में भी पूरा नाली का और गंदा वो पानी से। तब भी मैंने MCD को कॉल किया था, एक लोकल आंटी थी, उनको भी बोला था, उन्होंने भी सेम बोला कि वो कुछ नहीं करते हैं, बस खाली लेके चले जाते। वो तो चल ही रहा है, CM तो जेल में, हर कोई एक दूसरे को ब्लेम कर रहा है, किसी को नहीं पड़ा है कि स्टूडेंट्स के साथ क्या प्रॉब्लम है, किसी को नहीं मतलब है। एजुकेशन मिनिस्टर को कुछ नहीं है, इवन चीफ सेक्रेटरी का भी स्टेटमेंट कुछ था, इन्होंने कितनी रूडली बात की, तो किसी को ये नहीं पड़ा हुआ है। सबको पॉलिटिसाइज करना है सारा मैटर को, एक दूसरे को ब्लेम करना है कि BJP रिस्पॉन्सिबल है। बट दोनों आप ये बताइए, दिल्ली है ये, कोई UP तो है नहीं कि एक CM है यहाँ पे, UT भी है, सेंटर का गवर्नमेंट, और ये सेंट्रल दिल्ली है। सेंट्रल दिल्ली कितनी दूर है यहाँ से पार्लियामेंट, या कितनी दूर है इंडिया गेट? आए दिन इवेंट्स होते रहते हैं। ये एरिया भी, यहाँ का MP भी है बांसुरी स्वराज, जो BJP की एक पॉपुलर फेस है।
तो कोई एक आदमी तो रिस्पॉन्सिबल है ही नहीं। एमसीडी है, फायर डिपार्टमेंट है, पुलिस भी है। क्या पुलिस को नहीं दिखता यहाँ पे इतने टाइम से नीचे चल रही है बेसमेंट में, बगल में चौकी है, उन्हें नहीं दिखाई देता। हर कोई रिस्पॉन्सिबल है, बस ये कौन ज़्यादा है कौन कम है, प्राइमरी और सेकेंडरी है। तो रिस्पॉन्सिबल तो सब है, गवर्नमेंट भी है, स्टेट गवर्नमेंट भी है, सेंटर भी है, एलजी भी है, एमसीडी भी है, फायर भी है, पुलिस भी है, कोचिंग भी है, हर कोई रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ इतनी पानियाँ भरी रहती हैं। जिस वक्त एक्सीडेंट हुआ था मैं यहीं पे था और इतनी पानियाँ भरी रहती हैं। 4 दिन पहले नीलेश नाम का लड़का, उनका डेथ हो गया क्योंकि वो बस क्रॉस करना चाहते थे। गवर्नमेंट को भी आगे आना चाहिए और लाइब्रेरी बनाना चाहिए। ये भाई जो कह रहे हैं ना 50% जो ब्रोकरेज का जो कह रहे हैं वो इस टाइम पे बढ़ के अब वो 100% हो गया है। मतलब वो 1 मंथ का पूरा ब्रोकरेज ले रहे हैं अब। मीन्स अगर आप कोई 20,000 का रूम लेने आप जा रहे हो ना तो ब्रोकर आपसे 20,000 ब्रोकरेज ले लेता है। हाँ, तो ये परिस्थिति मतलब कि आ गया है, तो वो प्रॉब्लम है हम लोग का। इलेक्ट्रिसिटी 200 यूनिट फ्री है लेकिन स्टूडेंट को 10 रुपये से 14 रुपये पर यूनिट देने पड़ते हैं। पूरे देश में सारे स्टेट के लोग ये जानते हैं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी बिजली फ्री देती है, पानी फ्री देती है। लेकिन आप अगर यहाँ पे देखोगे ना तो सारे बच्चे इलेक्ट्रिसिटी बिल देते हैं, वाटर बिल देते हैं, सब कुछ देते हैं, सबसे लिया जाता है। और वो भी कितना 10 रुपये 12 रुपये पर यूनिट। अगर देखो ये मैं सिर्फ आपको इलेक्ट्रिसिटी का बता रहा हूँ, अगर आप एसी अलग से यूज़ करते हो ना तो उसका डबल चार्ज है यहाँ पे। तो जब मैं गांव पे था तो मैंने वीडियो देखा तो मुझे लगा कि मुझे बेस्ट जगह से पढ़ना है, तो मैं यहाँ पे आया। जब मैं यहाँ पे आया ताकि मैं टीचर के सामने से बैठ के पढ़ सकूँ। अब मैं जब क्लास में, मुझे पता चलता क्लास में 1000 स्टूडेंट है, 700 स्टूडेंट है एक क्लास में, 700 स्टूडेंट है एक क्लास में। मतलब कोचिंग माफिया तो मैं आपको बता रही हूँ कि विकास दिव्यकीर्ति सर है, उनकी क्लास चलती है। मैंने उनका ऑनलाइन कोर्स लिया था एक, हाँ दृष्टि IAS सर का कोर्स था। वो कोर्स चलाते हैं 2 साल में, सिर्फ उनकी पेन ड्राइव कोर्स चलती है। उसके बाद वो कभी खुद नहीं, 2 साल तक वही कोर्स पढ़ाते, 2 साल तक वो कभी क्लास में नहीं मिलेंगे। टीचर वो हैं, पढ़ा हो रहे हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन पूछना है तो उन्होंने उसके लिए DU के एक टीचर को अपॉइंट किया है। वो 1 वीक में 1 दिन मिलेंगे, आप उनसे जाके 1 वीक में जो आपके क्वेश्चंस हैं वो आप नोट कर लो, उनसे जाके पूछो ज्ञान। वो सिर्फ उसके बाद जब आप अप्रोच करोगे कि सर से मिलना है, सर से मिलना है, तो उनका इतना ज़्यादा जैसे CM के भी, मतलब अगर आपको PM से मिलना है तो भी शायद 1-2 महीने ट्राई करके मिल सकते हो कुछ रीज़न देके। उनको मिलने के लिए वो 1000 पूछेंगे, क्यों मिलना है, क्यों मिलना है, क्यों मिलना है। सर से आप क्या पूछोगे? मतलब टीचर जो वो पढ़ा रहे हैं उसकी जगह हम किसी और से क्यों सवाल पूछें? आप टीचर हो, आप पढ़ा रहे हो, या तो मत पढ़ाओ। देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं, इस पर हमारी डिमांड्स हैं जो हम कंसर्न्ड अथॉरिटी के सामने रखना चाहते हैं, जो कि यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, उनका कोई नामो निशान नहीं है। सबसे पहला हमारा डिमांड है कि वी वांट ये कंपनसेशन ऑफ ₹5 करोड़। तो जितने भी हमारे जो 4 UPSC एस्पिरेंट्स हैं जिनकी दुखद हत्या हो गई है, उनके लिए हमें कंपनसेशन चाहिए 5 करोड़ की। दूसरी है कि जैसा होम मिनिस्ट्री ने बोला है कि एक कमेटी बिठाई गई है, वो कमेटी हम चाहते हैं कि वो कमेटी यहाँ पे आके हमारे डिमांड्स को सुने, क्योंकि आप हमारे डिमांड्स को अगर यहाँ पे सुनने आएंगे तो आप फर्दर कमेटी में उस कमेटी में फर्दर आप काम कर पाएंगे। तीसरी मांग हमारी ये है कि जिनको भी आपने अरेस्ट करा है, जो भी कंसर्न्ड लोग थे जो इसमें इन्वॉल्व थे, हमें उनके नेम्स चाहिए, प्रॉपर नेम्स चाहिए। ये चाहिए कि आपने किनको अरेस्ट करा है और किन सेक्शन के बेसिस पे आपने उन लोगों को अरेस्ट करा है, हमें यहाँ पे वो डिटेल्स चाहिए। हमें स्टूडेंट ग्रीवांस सेल चाहिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट की ग्रीवांसेस सुनने वाला कोई है नहीं यहाँ पे। जब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे माफिया कोचिंग सेंटर्स यहाँ पे खुले हैं, जहाँ पे बेसमेंट जिसकी NOC सबमिट करी गई थी कि जो बेसमेंट है उसे एज अ स्टोरेज रूम या एज अ पार्किंग लॉट के लिए यूज़ करा जाएगा, वहाँ पे स्टूडेंट्स को बिठाया जा रहा है। इलीगली कंस्ट्रक्टेड लाइब्रेरीज बनाई गई है, वहाँ पे इलीगली क्लासेस ली जा रहे थे स्टूडेंट्स के, तो उसको प्रोहिबिट करने के लिए वो भी हमारी एक मांग है। जब आपको पता है कि पूरे देश भर से, चाहे वो कोई शहर हो या कोई भी गांव का क्षेत्र हो या आदिवासी क्षेत्र से, यहाँ पे विद्यार्थी आते हैं, दिल्ली आते हैं, सपना लेकर आते हैं, IAS बनना है, IPS बनना है, CA बनना है, तो बड़े बड़े सपने लेकर आते हैं। आप इतनी सी भी फैसिलिटी यहाँ पे स्टूडेंट्स को नहीं दे सकते हो, एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे सकते, एक प्रॉपर कोचिंग सेंटर नहीं दे सकते हो, प्रॉपर लाइब्रेरीज नहीं दे सकते हो। आप एक क्लासरूम जिसमें एक ही एग्जिट और एक ही एंट्री पॉइंट है,
बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो शैली ओबरॉय के रेजिडेंस के बाहर जाके जस्टिस डिमांड कर रहे थे, और जो उन्होंने ये लापरवाही और ये जो उनकी भ्रष्टाचारी है उसके लिए रेजिग्नेशन जब मांग रहे थे, तो फिर जो शैली ओबरॉय जो उसकी पुलिस है उन्होंने लाठी चार्ज, एक बहुत रूथलेस लाठी चार्ज स्टूडेंट्स पे करा था। स्टूडेंट्स वर सिवियरली इंजर्ड, क्लोथ्स वर टोन अपार्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। तो ऐसे आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हैं, ऐसी अकाउंटेबिलिटी है। ड्रेनेज जो सीवेज सिस्टम ठीक रखते तो आज हमारे तीनों साथी हमारे साथ होते, आज नीलेश राय हमारे साथ होता, आज वो अपनी मेंस की तैयारी कर रहा था, आज ये सारे स्टूडेंट्स अपने प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी कर रहे थे। पर आपने एक ही रात में अपनी लापरवाही और भ्रष्टाचारी की वजह से उनका सपना चूर चूर कर दिया है। जिस घर में चिराग था उस चिराग को आपने बुझा दिया है। तो आप टोटली अकाउंटेबल हो, आप टोटली रिस्पॉन्सिबल हो, आपको यहाँ पे आना चाहिए। जी हमने पहले डिमांड कर रखी है, ये ऑलरेडी चल रहा है और अभी से नहीं है, बहुत सालों से चलता आ रहा है। जब इन लोगों को पता है, प्रशासन को पता है, मेयर को पता है, एमसीडी को पता है कि लाखों स्टूडेंट्स यहाँ पे आके पढ़ते हैं, तो ये लोग यहाँ पे पहले से ये व्यवस्था करके क्यों नहीं रखते हैं? द मेयर इज़ रिस्पॉन्सिबल, एमसीडी इज़ रिस्पॉन्सिबल, प्रशासन है, और ये जो माफिया कोचिंग सेंटर्स है ये रिस्पॉन्सिबल है। किसने बोला था इन लोगों को बेसमेंट पे इलीगल कंस्ट्रक्टेड लाइब्रेरीज चलाए? किसने इनको बोला था कि ये लोग इलीगल क्लासेस चलाए? इनके पास पैसा नहीं है, इतने पैसे स्टूडेंट्स देते हैं आप लोगों को क्लासेस के लिए, तो कहाँ है वो सारे पैसे? भ्रष्टाचार तो आप खुद कर रहे हैं। पिछले साल भी यही हुआ था संस्कृति इंस्टीट्यूशन में जो मुखर्जी नगर में है, वहाँ पे आग लगी थी। स्टूडेंट्स अपनी जान बचाने के लिए विंडोज खोल के वहाँ से तारों से कूद रहे नीचे। ये कैसी व्यवस्था है? हमारा फ्यूचर ब्राइट ही नहीं है इन लोगों के हाथों में। देखिए तो पासिंग इन द पार्सल का गेम चल रहा है इन लोगों के सामने, जिससे कि जो ये इंसिडेंट है प्रॉपर डाइवर्ट हो जाए। हम स्टूडेंट्स ग्राउंड लेवल पे हैं, हम जानते हैं कि एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल कौन है। हमारा यही है कि हम यहाँ पे अपने डिमांड्स लेके बैठेंगे जब तक जस्टिस नहीं मिलेगा, जब तक जो कंसर्न अथॉरिटीज़ है जब तक वो यहाँ नहीं आएंगे, हम लोगों का यही प्रोटेस्ट चलता रहेगा, हमारा संघर्ष यही चलता रहेगा। उसी लाइब्रेरी में हम भी जाते थे, सब ने लिया। ऐसा नहीं है कि सरकार बोलेगा कि ऑपोजिशन बोलेगा सरकार ने ये, अगर सरकार का ये जिम्मेदारी था तो ऑपोजिशन वाले क्या कर रहे थे? उन लोगों का भी तो कुछ जिम्मेदारी होता है। सब ने मिल के लिया है। ये एक मर्डर है, एक सोची समझी, क्योंकि यहाँ पे हम स्टूडेंट्स ने बार यहाँ का जो पार्षद है उनको, एमएलए है उनको, सबको हमने बोला था कि यहाँ पे ये वाटर लॉगिंग का प्रॉब्लम होता है। पर क्या हुआ? किसी ने कोई नहीं, ठीक है, सब बहुत पावरफुल पर्सन है दे, वो सोचते कुछ नहीं होगा। मैं यही कह रहा हूँ, ये यहाँ पे टॉप मोस्ट ब्यूरोक्रेट्स यहाँ से निकलते हैं, देश का IAS IPS। और दूसरी बात है, ऐसा नहीं है कि हम लोग यहाँ पे 100 रुपये में, जैसे हमारा कॉलेज या यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स में होता था कि हम लोग 100 रुपये 200 रुपये में साल भर के लिए, ऐसा नहीं है। हम लोग महीने के एक बेड के लिए 15,000 20,000 25,000 रुपये दे रहे हैं। उसके बाद ये हाल है। लेकिन हम लोग इस बार नहीं छोड़ेंगे, हम आखिर तक देखेंगे। आज तक यही होता था, बट अब नहीं होगा, अब आखिर तक जाएंगे। कि ये जो हुआ है ये ओपन एंड शट केस है। इसके लिए आपको क्या शार्लक होम्स को ज़रूरत है? आपको कोई ऐसा डिटेक्टिव चाहिए जो आके यहाँ पे खड़े, सबको पता है कौन क्या है किसने क्या है। इसके लिए कोई ऐसा शार्लक होम्स या डिटेक्टिव नहीं चाहिए। ये बेसिक ये चाहिए। हमें जो एथिक्स पढ़ाते हैं, जो टीचर जो UPSC एथिक्स एक टॉपिक रखते हैं, वो एथिक्स आज कहाँ पे गया? जो फंडामेंटल राइट्स हमें पढ़ाया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन जो हमें पढ़ाया जाता है, वहाँ पे बेसिक राइट्स है, राइट टू लाइफ, वही हम मांग रहे हैं। हम पढ़ना चाहते हैं, हम जीना चाहते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहते। हम यहाँ पे बैठे हैं, जितने भी इधर उधर सब हम UPSC एस्पिरेंट हैं। हर किसी का सोच, हर किसी का बोलने का स्टाइल शायद अलग हो सकता है। किसी को लग सकता है यहाँ पे राजनीति हो रहा है तो उधर गया, किसी को लग रहा है उधर राजनीति हो रहा है, लेकिन सबका मोटिव एक ही है, सब UPSC एस्पिरेंट है, सबका एक ही गोल है, वी वांट जस्टिस।